ذرا سوچئے کہ کیسی گھڑی جو نہ صرف وقت بتاتی ہے بلکہ اپنی اونچائی کی وجہ سے آسمان کو بھی چھوتی ہے۔ ایک ایسا ٹاور جو نہ صرف اسکائی اسکریپر ہے بلکہ ایک ایسا ہوٹل کمپلیکس بھی ہے جس کو بنانے کے لیے دنیا بھر کے انجینئرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ کہانی ہے مکہ رائل کلاک ٹاور کی، جو مسجد الحرم سے صرف 300 میٹر کے فاصلے پر بنایا گیا ہے اور جو 601 میٹر کی بلندی کو چھوتا ہے۔ اس میں بسایا گیا انسانوں کا سب سے اونچا فلور اور دنیا کی سب سے اونچی مسجد بھی ہے۔ اس کا موازنہ اگر برج خلیفہ سے کیا جائے تو برج خلیفہ میں انسانوں کا بسایا ہوا سب سے جو آکوپائڈ فلور ہے وہ 585 میٹر کی اونچائی پہ واقع ہے، اور اگر شنگھائی ٹاور سے اس کا موازنہ کیا جائے تو شنگھائی ٹاور میں 583 میٹر پر انسانوں کا بسایا ہوا فلور ہے، جبکہ مکہ رائل کلاک ٹاور میں انسانوں کا بسایا ہوا فلور جو 601 میٹر کی اونچائی پہ واقع ہے۔ مکہ رائل کلاک ٹاور ایک عام عمارت نہیں بلکہ اس پہ لگی ہے دنیا کی سب سے بڑی گھڑی جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے، اور گھڑی کے اوپر ایک گولڈ پلیٹڈ کریسنٹ، یہ کریسنٹ 24 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ لیکن اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد ایسا اسکائی اسکریپر ہے جس کی سب سے اونچی منزل کسی انسان کے زیر استعمال ہے۔ مسجد الحرم سے صرف 300 میٹر کے فاصلے پر اس اسکائی اسکریپر کو بنایا گیا۔ 2002 سے قبل اس جگہ پر اجاد کا قلعہ ہوتا تھا۔ کنگ عبدالعزیز نے اس کو گرا کر یہاں دنیا کا سب سے خوبصورت ہوٹل کمپلیکس بنانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے مرحلے میں 7 اسکائی اسکریپر بنائے گئے تاکہ حج عمرہ کے زائرین کو بہترین رہائشی سہولیات میسر آ سکیں، لیکن پھر ایک دلچسپ آئیڈیا سامنے آیا، کیوں نہ یہاں دنیا کا سب سے منفرد اور سب سے اونچا ٹاور تعمیر کیا جائے جو نہ صرف ہوٹل کمپلیکس بلکہ مسجد کے مینار کے طور پر بھی کام کر سکے۔ پہلے اس ٹاور کی اونچائی 450 میٹر تک پلان کی گئی، لیکن بعد میں انجینئر نے سوچا کیوں نہ اس کی اونچائی میں اضافہ کر کے اس کو مزید منفرد بنایا جائے۔ 150 میٹر مزید اضافہ کر کے یہ منصوبہ 601 میٹر بلندی تک جا پہنچا اور آج دنیا کے سب سے مہنگے اسکائی اسکریپر کے منصوبوں میں شامل ہے۔ آج یہ دنیا کی چوتھی بڑی بلڈنگ ہے، لیکن جس وقت یہ پلان تیار ہو رہا تھا تو یہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بننے والی تھی۔ جو ہی اس کے 600 میٹر اونچا ہونے کی خبر لیک ہوئی تو دبئی نے برج خلیفہ کی اونچائی میں مزید اضافہ کر کے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اس ٹاور کو تعمیر کرنے کے لیے بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا، جب مکہ رائل کلاک ٹاور کا منصوبہ تیار کیا گیا تو اس کی اونچائی 450 میٹر رکھی گئی۔ انجینئرز نے اسی حساب سے اس کی فاؤنڈیشن رکھی، لیکن جب اس کی تعمیر 450 میٹر تک مکمل ہو گئی تو ایک نیا چیلنج سامنے آیا۔ جب یہ فلک بوس ٹاور 450 میٹر کی اونچائی کو پہنچا تو تب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی اونچائی میں 150 میٹر مزید اضافہ کر کے اسے 600 میٹر تک پہنچایا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی بنیاد کو صرف 450 میٹر کی اونچائی سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اگر بغیر کسی ترمیم کے اس پر مزید بوجھ ڈالا جاتا تو یہ کسی بھی وقت ایک بڑے انجینئرنگ بحران کو جنم دے سکتا تھا۔ یہ مسئلہ نہایت سنگین تھا کیونکہ 450 میٹر تک کے وزن کو برداشت کرنے کے لیے بنائی گئی عمارت 601 میٹر کی عمارت کو سہارا دینے کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ اگر اس پر یہ بوجھ ڈالا جاتا تو یہ اس پوری عمارت کے لیے مزید خطرے کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اب انجینئرز کے پاس صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو اس عمارت کو 450 میٹر کی اونچائی تک ہی محدود رکھا جائے یا تو اس کو ازسر نو تعمیر کیا جائے، لیکن ازسر نو کی تعمیر میں بے شمار لاگت آنی تھی۔ اسی دوران جب انجینئر سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے بیٹھے تھے تو سعودی کنگ نے ایک نئی خواہش کا اظہار کیا، یہ محض ایک مینار نہ ہو بلکہ دنیا کی سب سے بڑی گھڑی اس پہ نصب کی جائے۔ یہ کوئی عام گھڑی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی گھڑی جو 43 میٹر بڑی تھی، جو 25 کلومیٹر دور سے بھی دیکھی جا سکے، جس کے اوپر ایک دیو ہیکل ہیرے کی مانند سٹرکچر ہو، جس کے سب سے اوپر 24 کیرٹ سونے سے تیار کردہ ایک عظیم الشان کریسنٹ نصب ہو۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا یہ ٹاور اس اضافی بوجھ کو سہ پائے گا؟ یہ دنیا بھر کے انجینئر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا، لیکن اس کا ایک ایسا حل نکالا گیا جس نے اس کی رونق میں مزید 4 چاند لگا دیے۔ کئی ماہ کی مسلسل مشقت کے بعد انجینئر نے آخر یہ حل نکالا کہ 450 سے 600 میٹر تک، یعنی اوپر والے جو 150 میٹر ہیں، انہیں لائٹ ویٹ مٹیریل سے تیار کیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک جدید سٹیل سٹرکچر تیار کیا گیا جو اصل بنیاد پر اضافی وزن کو متوازن رکھ سکے۔ اس کے علاوہ ٹاور کے اوپری حصے کے وزن کو تقسیم کرنے کے لیے انجینئرنگ کے جدید اصول اپنائے گئے۔ اس جدت نے نہ صرف ٹاور کو محفوظ بنا لیا بلکہ اسے دنیا کی منفرد عمارتوں میں شامل کر دیا۔
टावर की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज जो सामने आया कि दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी इस पर कैसे नस्ब की जाए। वो घड़ी जो इस टावर की सबसे बड़ी पहचान है, जो हर साइड से 43 मीटर बड़ी है। एक साइड की क्लॉक 16,000 स्क्वायर फुट पर फैली हुई है, यानी एक क्लॉक 500 गज के 3.5 प्लॉट जितनी बड़ी है। ये कोई आम घड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घड़ी थी जो 450 मीटर की बुलंदी पर नस्ब होनी थी और ऐसी ऊंचाई पर शदीद तूफानों, हवाओं और मौसम की सख्तियों का मुकाबला कर सकती हो। ये काम किसी आम घड़ी साज कंपनी के बस की बात नहीं थी, इसीलिए एक ऐसी कंपनी का इंतखाब किया गया जिसको इस काम में 165 साल तजर्बा था। ये थी जर्मनी की मशहूर कंपनी बैरेट। ये कंपनी माजी में भी बड़ी घड़ियों के मंसूबे अंजाम दे चुकी थी, लेकिन 450 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी तैयार करना और इसको इंस्टॉल करना इंसानी तारीख का सबसे बड़ा घड़ी साजी का मंसूबा था। अब सवाल ये था कि घड़ी के कांटे कितने बड़े होंगे, इतनी तेज हवाओं में इन्हें हिलने से कैसे रोका जाए, इतनी बुलंदी पर यह घड़ी कैसे काम कर सकेगी। जब इंजीनियर्स ने हवाओं से लड़ने का फैसला किया तो एक एरोडायनामिक डिजाइन तैयार किया गया। ये महज स्टील और कांच का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक एरोडायनामिक डिजाइन तैयार किया गया जो शदीद मौसमी हालात में भी, सख्त आंधी और तूफान में भी मुस्तहकम रह सके। इस घड़ी का बड़ा कांटा 23 मीटर और छोटा कांटा जो था वो 17 मीटर था। यूं समझा जाए अगर बड़े कांटे को सीधा खड़ा किया जाए तो ये 5 मंजिला बिल्डिंग का मुकाबला कर सकता था और छोटा कांटा एक बड़ी बस जितना था। इन देव हैकल सुइयों को हवा के झटकों से महफूज रखने के लिए खास फाइबर और कार्बन कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जो आम स्टील से कई गुना हल्का मगर मजबूत होता है। अब सबसे हैरान कुन ये था कि ये देव हैकल सुइयां इतनी ऊंचाई पर तेज हवाओं में कैसे घूमेंगी, इनका वजन कैसे मुतवाजन रखा जाएगा, ये घड़ी वक्त की दुरुस्तगी कैसे बरकरार रखेगी। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी को चलाने के लिए आम घड़ियों जैसे कॉइल या स्प्रिंग नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर दरकार थी। ऐसी मोटर लगाई गई जो शदीद तूफान में भी घड़ी को सही वक्त पर चलाती रही। घड़ी के हर कांटे को उसके वजन के मुताबिक मुतवाजन किया गया ताकि तेज हवाओं में ये लरजने न लगे। मुकम्मल सिस्टम को खास सेंसर के जरिए कंट्रोल किया गया जो हर सेकंड वक्त की दुरुस्तगी को बरकरार रखते हैं। घड़ी के कांटे इतने बड़े थे कि इंसान आसानी से इसमें चल सकता था। घड़ी के ये कांटे स्पेशल कार्बन फाइबर से बनाए गए। ये लाइट वेट मटेरियल हैं जो स्टील से ज्यादा मजबूत हैं, जो ज्यादा दबाव पर मुड़ भी नहीं सकते और ये रस्ट प्रूफ है। इस टावर के चारों साइडों पर 4 घड़ियां नस्ब हैं, तो 5 कांटों का एक सेट बनाया गया। एक सेट बैकअप पे रखा गया ताकि कोई भी कांटा अगर खराब हो तो बैकअप में जो मौजूद कांटा है उसको इस्तेमाल में लाकर इसको रिप्लेस किया जा सके। ये घड़ी क्लॉक ड्राइव से ऑपरेट होती हैं। इनके अंदर मेंटेनेंस स्विच लगा होता है जिसको दबाने से ये घड़ी के कांटे सीधे हो जाते हैं। इन कांटों के अंदर मेंटेनेंस वर्कर जाकर अपना काम कर सकते हैं। मक्का रॉयल क्लॉक टावर की सबसे बड़ी घड़ी अब मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन एक चीज अभी बकाया थी, वो थी कलर सिलेक्शन। कौन सा ऐसा कलर दिया जाए जो इस घड़ी को पूरी दुनिया में सबसे मुनफरिद बनाए, कौन सा रंग दिया जाए जो दूर से भी चमकता हुआ नजर आए। इंजीनियर ने ये देखा कि अगर नीला रंग दिया जाएगा तो ये बहुत मध्यम होगा, सुर्ख अगर दिया जाए तो ये ज्यादा चमकदार मगर आरामदेह नहीं है, पीला रात में ज्यादा वाज़ा नहीं होगा। फिर एक तारीखी फैसला हुआ, ग्रीन कलर की एलईडी लाइट की सिलेक्शन हो गई। ये कलर रात के अंधेरे में सबसे खूबसूरत और सबसे वाज़ा दिखाई देता है। इस टावर पर 20 लाख एलईडी लाइट्स लगाई गई। हर एक एलईडी लाइट एक दूसरे से 4 इंच के फासले पर है, जो दूर से देखने वाले को एक बहुत बड़ी लाइट के तौर पर नजर आती हैं। अब यहाँ एक और चैलेंज सामने आया, ये एलईडी लाइट्स मक्का के उस तपती धूप में कैसे काम कर सकेंगी जहाँ दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर होता है। इसका हल ये निकाला गया कि हर एलईडी को गर्मी बर्दाश्त करने के लिए खास तरह से डिजाइन किया गया। इनके पीछे कूलिंग सिस्टम लगाया गया जो इन्हें ओवरहीटिंग से बचाता है। ये हमारे तब मुकम्मल हो चुकी थी। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी अपनी मकाम पर नस्ब हो चुकी थी, लेकिन अब भी एक चीज बकाया थी, वो सुनहरी चांदनुमा क्रीसेंट जो इस टावर की पहचान बनने वाला था। टावर की ऊंचाई यानी 600 मीटर पर इस क्रीसेंट को पहुंचाना इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। ये क्रीसेंट 75 मीटर ऊंचा और इतना ही चौड़ा था, यानी अगर इसको आम जबान में समझे ये 25 मंजिला बिल्डिंग के बराबर था। इसको लाइट वेट रखने के लिए कार्बन फाइबर और फाइबर गिलास को मिक्स करके बनाया गया, लेकिन फिर भी इसका वजन, जो इसका टोटल वजन था वो 35 टन था, यानी एक छोटे जहाज जितना। ये दुनिया के सबसे बुलंद इंसानी तामीर शुदा फ्लोर के ऊपर लगाया जा रहा था। ये तारीख की सबसे पेचीदा और खतरनाक इंस्टॉलेशन थी। एक गलती और ये क्रीसेंट जमीन पर आ सकता था। जब इंजीनियर ने पहली बार इस मंसूबे पे काम शुरू किया तो एक सवाल सबके जहन में था, 600 मीटर की बुलंदी पर 35 टन का क्रीसेंट आखिर लगाएंगे कैसे? हेलीकॉप्टर बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्रेन इतनी बुलंदी पर कंट्रोल करना नामुमकिन है, टुकड़ों में ले जाकर ऊपर असेंबल किया जाए, लेकिन इतना वजनी स्ट्रक्चर जोड़ना भी आसान नहीं था। बहुत से माहिरीन ने कहा कि ये काम मुमकिन नहीं, लेकिन
मक्का क्लॉक टावर के इंजीनियर के लिए नामुमकिन कोई लफ्ज नहीं था। इस काम को दुनिया की सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती थी, वो थी मशहूर जर्मन कंपनी रीवा GmbH। लेकिन यहाँ एक और मसला दरपेश आया। मक्का के मुकद्दस शहर में सिर्फ मुसलमानों को ही दाखिले की इजाजत है। रीवा कंपनी में मालिक समेत तमाम काम करने वाले इंजीनियर नॉन मुस्लिम थे। क्रीसेंट के ऊपर हीरे की तनसीब के अलावा टावर के ऊपर के 150 मीटर की फिनिशिंग का काम भी इसी जर्मन कंपनी को दे दिया गया। ये एक ऐसा काम था कि जिसके लिए रीवा कंपनी के इंजीनियर्स का मक्का के मुकद्दस शहर में फिजिकली आना जरूरी था, क्योंकि मक्का में सिर्फ मुसलमानों को ही एंट्री दी जाती है। इसीलिए रीवा कंपनी के मालिक और इसमें काम करने वाले इंजीनियरों को मक्का रॉयल क्लॉक टावर पर काम करने के लिए मुसलमान होना पड़ा। रीवा कंपनी के जिन इंजीनियर ने मजहब तब्दील नहीं किया, उन्होंने दुबई में रहकर इस क्रीसेंट पे काम किया। जब ये क्रीसेंट तैयार हुआ तो इसे फिर मक्का ट्रांसपोर्ट किया गया। अगर इस क्रीसेंट को वन पीस में बनाया जाता तो इसको 600 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि इस मकाम पर हमेशा भीड़ होती है। हजारों जायरीन हज या उम्रे के लिए मस्जिद हरम का तवाफ कर रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ सिर्फ टावर क्रेन ही काम कर सकती हैं, लेकिन टावर क्रेन एक साथ इतना ज्यादा लोड नहीं उठा सकती। इस मसले को सुलझाने के लिए इस क्रीसेंट को 4 अलग अलग पॉट्स में बनाया गया। इस क्रीसेंट पर सोने की लेयर चढ़ाने के लिए 10 करोड़ मोज़ेक टाइल के पीसेस चिपकाए गए, जिन पर सोने की तह चढ़ी हुई थी। इन मोज़ेक टाइल को बहुत बारीक बीनी से बनाया गया था, फिर इसको 2x2 सेंटीमीटर के ब्लॉक में काटा गया। ये पूरा क्रीसेंट दुबई में तैयार किया गया और इसका डेमो वर्जन भी दुबई में हुआ, क्योंकि वो जर्मन इंजीनियर जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो ये देखना चाहते थे कि कहीं इसमें कोई खामी तो नहीं रही। ये सारे मसले हल करने के बाद इस क्रीसेंट को दुबई से मक्का ट्रांसपोर्ट किया गया। यहाँ ये चैलेंज था कि इसको 600 मीटर की ऊंचाई पर इंस्टॉल करना। अब इस 600 मीटर की ऊंचाई पर इस क्रीसेंट की इंस्टॉलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस मसले को सुलझाने के लिए इस क्रीसेंट को 4 अलग अलग हिस्सों में ऊपर खींचा गया। हर हिस्से के वजन करीबन 4 टन था। इंजीनियर्स और वर्कर के लिए इन हिस्सों को ऊपर लेकर जोड़ना एक खतरनाक टास्क था, क्योंकि यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। क्रीसेंट को ऊपर खींचने के दौरान अगर तेज हवाएं चल पड़ी तो ये पहले से मुश्किल काम मजीद मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही हुआ कि जब क्रीसेंट का एक हिस्सा हवा में था, तेज हवाएं चल पड़ी। वर्कर ने इसे रस्सियों से पकड़कर हिलने से रोका और आखिर पर एक पोजीशन पर लाकर इसे फिक्स कर दिया। इस क्रीसेंट में टोटल 3 फ्लोर हैं। एक ऑफिस है, एक मस्जिद है और एक मीटिंग रूम है। ये मस्जिद दुनिया की मैन मेड स्ट्रक्चर में सबसे ऊंची मस्जिद है। मक्का रॉयल क्लॉक टावर की कंस्ट्रक्शन 2002 में शुरू हुई। 9 साल ये काम मुसलसल चलता रहा और 2011 में इसकी तकमील हुई। इस कॉम्प्लेक्स में 11,116 रूम हैं। सिर्फ मक्का रॉयल क्लॉक टावर में 1650 रूम हैं। इस क्लॉक का वक्त एटॉमिक क्लॉक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, जो इसे दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक में शामिल करता है। क्लॉक टावर रात को 20 लाख LED लाइट से रोशन होता है, जो 25 किलोमीटर दूर तक दिखाई जा सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।